धन्यवाद Professor Ram Singh ji, and especially to Professor Ved Prakash ji. So many aspects of Chaudhary Sahab's life, his vision, his commitment have been covered. Today is an important day that we get to remember Chaudhary Sahab. In the morning today, we went to Kisan Ghat. These are tough circumstances, so usually people come from all over the country on these dates. We hold a havan because Chaudhary Sahab was Arya Samaji. Today was also tough because my father wasn't there. Uh, and I think it's not a date he would miss. So, sorry, it's tough for me to speak. Let me compose myself. So, I'm thankful for the opportunity that this forum has provided to debate the man. Chaudhary Sahab, of course, when you look at India today, even the modern state that we are living in, the modern country, the 21st century, so much has changed, but still a lot is still the same. And a lot of the things that Chaudhary Sahab warned us about the path we're taking, about like Professor Ram Singh ji spoke about extensively about his alternate ideology, the blueprint, especially his economic policy. He had warned us that if we go along the path of big industry, of large ideas, large scale projects, that the human impact of being left out is going to be massive. And a lot of those things we are finding to have come true, unfortunately, for our country. Also, we must remember Chaudhary Sahab as a strong social reformer. His capacity to govern, his capacity to build institutions. We forget, so many things that today we are taking for granted. If you look at the history of it, when was this institution created? Somewhere along the line, it was Chaudhary Sahab, or when he was in power, that he initiated things. For instance, Ram Singh ji spoke about the rule of law, that it must apply equally to everyone. Chaudhary Sahab was a strict administrator. उनके लिए ये नहीं था कि ये मेरे वोटर हैं या ये मेरे लोग हैं, तो अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो ये दुरुपयोग करें. उनके बारे में लोग बताते हैं, जो जब वो जाते थे मिलते थे, चौधरी साहब राइटिंग डेस्क पे बैठे होते थे. अब आए हैं गांव से, को मिलने आए हैं, वो भी बिकॉज ऑफ चौधरी साहब का जो प्रेजेंस था या जो उनका ऑरा था, वह भी संकोच महसूस करते थे कि हम क्या कहें. अब मन में कोई और बात लेके आए, लेकिन जब वहां गए कमरे में भीतर, चौधरी साहब की एक आंख ऊपर ऐसे देखा उन्होंने, कुछ पत्र में वो व्यस्त थे या पढ़ने में व्यस्त थे, तो बात कुछ और ही निकल पाती थी. प्रोफेसर वेद प्रकाश जी ने भी किस्सा सुनाया, ये बिल्कुल सही है. तो चौधरी साहब वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, बट इट्स इम्पोर्टेंट ऑन डेज लाइक दिस, स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन. हमने हिस्ट्री की बात की, चौधरी साहब के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की. What I can bring to this discussion today is whatever little insight I have about the man, his family life. मैं ये कह सकता हूँ कि आज एक जो धारणा है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, especially for the younger generation, when you idolizing a man like Chaudhary Charan Singh ji, you're also looking at clues. What makes a man successful? How can we reach that position? हम अपने लोगों की लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो कैसे उन चीजों को हासिल करें, उस ऑफिस को प्राप्त करें, ताकत वह संसाधन जुटाएं कि हम कामयाब हों. तो सफलता की वो कुंजी क्या है, चाबी क्या है, क्या रहस्य है? तो चौधरी साहब के जीवन को भी हम क्रिटिकली एनालाइज करें. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक धारणा है कि यू हैव टू बी रूथलेस टू सर्वाइव. बचपन से लेकर बच्चा जो आज पैदा हो रहा है न्यू एज में, डिजिटल एज में, उसे बताया जाता है कि कंटेंट कैन कम लेटर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर पैकेजिंग. So world has changed, so packaging is very very important. That's why you see in social media today there are platforms that are focused on yourself. Selfie लेना, उसी को post करना, Instagram पे अपने बारे में बात रखना. So we have become very very oriented towards glorification of self and presentation of self. What that means also is that somewhere along the line we may not be truthful. We may be putting on a show, putting on a mask. मुखौटा पहन के हम समाज में रह रहे हैं, छोटे से बड़े झूठ हम बोलने को मजबूर हो रहे हैं. हमें लगता है कि यही सिस्टम है.
तो चौधरी साहब की वो क्या गुण थे कि वो इतने बड़े नेता के रूप में आज भी लोग उनको याद करते हैं। मैं मानता हूं कि उनकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, उनकी सिंप्लिसिटी, कि वो मुखौटा नहीं था, परिवार के लिए भी वही असूल थे, घर के लोगों के लिए वही सिद्धांत थे, जो समाज में जिन बातों को कहते थे, इंटरकास्ट मैरिज की उन्होंने बात की, तो वही चीज फैमिली में थी, वही सिंप्लिसिटी फैमिली के अंदर थी, और वही उनके फॉलोअर्स के लिए थी। व्हाट्स आल्सो इम्पोर्टेंट इज दैट ही वाज वेरी काइंड हार्टेड, मतलब मोरालिटी और एक ह्यूमैनिटी जो उनके हर काम में दिखाई देती है, कि उनकी सोच वही थी कि उनके लोगों को कहीं चोट ना पहुंचे। ही कुड नॉट विथस्टैंड दैट। इतने सक्सेसफुल होने के बाद फैमिली के लिए टाइम निकालना, मॉडर्न एज में बताया जाता है कि भैया बिजी रहो, बिल्कुल फोकस रहो। वो बिल्कुल फोकस थे, बहुत पैशनेट थे, बहुत बहुत व्यस्त थे। उनके अंदर जितनी आत्मसमर्पण की भावना थी, त्याग की भावना थी, शायद किसी भी सक्सेसफुल आदमी में इतना हासिल भी जिन्होंने किया है, अगर आप देखेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप दैट ट्रेट। बट फिर भी वे अपने घर वालों के लिए हमेशा टाइम निकालते। मुझे याद है कि मैं तो 8-9 साल का था जब उनका निधन हो गया था, लेकिन वह एक तरह से हमारे परिवार के लिए एक केंद्र बिंदु थे। मुझे 12 नंबर तुगलक रोड की उनकी कोठी के वो दृश्य याद है। कोई भी आता था, गांव से आया है, कोई दूर का रिश्तेदार आया है, कोई बधौले से आया है, कोई मेरी बुआस थी, और बड़ी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली होती थी उन दिनों में। लोगों का आना जाना लगातार वहां रहता, और हर शाम को चौधरी साहब कितने ही व्यस्त हों, बैठक होती थी। मुझे याद है उनके बीच में और चौधरी स्वरूप सिंह जी के बीच में जो एक लाइवली बैंटर होता था, ह्यूमर होता था। तो यही चीजें, अगर आप वेल राउंडेड पर्सनैलिटी के रूप में चौधरी साहब को देखें तो उससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। और उनके अंदर ये सबसे बड़ा गुण था कि वे इमोशनल आदमी थे। कई बार स्पीच में अपने अपने शायद जो उन्होंने कठिनाइयां देखी, जो गांव में उन्होंने तंगियां देखी, जो अभाव देखे, वे उनको हमेशा उनके संस्मरण में, उनकी उनकी यादों में थी वो बातें, उनकी जुबान पे वो बातें बहुत जल्दी आ जाती थी। और कई बार जैसा कि उदाहरण भी दिया कि किसी ने आके उनको कह दिया कि वैचारिक दृष्टिकोण इस आदमी का ठीक नहीं, इसका आदमी का चरित्र ठीक नहीं है, तो तुरंत फैसला ले लेते थे, टिकट बदल दिया। तो दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ समवन हु इज अ इमोशनल पर्सन, not a very calculating person. So I would advocate that today's youth especially does need to introspect. We need to be real to our own issues, to our reality. We need to be very, very connected to our roots. That's the one big takeaway that the modern youth should take away from Chaudhary Sahab. बाकी मैं ये जानता हूँ कि चौधरी साहब was also very, very careful, क्योंकि जो बातें यहाँ रखी गई हैं कि उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, and about his scholarship, the names of his many books were told to us by Professor Ved Prakash ji in his speech today. The fact of the matter is that he wrote a lot of those books in English, but still, even today, perhaps people will say that he will be easily bracketed into someone representing very backward people. तो वो टैग लगाना बहुत आसान था उन पे, कि वो तो गांव की वकालत करते थे, किसान की वकालत करते थे, तो मतलब वो भी एक पिछड़े विचारधारा से जुड़े रहे। अच्छा, उन्होंने इंग्लिश में किताबें लिखी। lot of people are today also are surprised to understand and know that at that time that was Chaudhary Sahab's level of thought, of intellect. So he was very conscious of the biases, and he wanted to remove those biases for the coming generations that were born in villages. That's why he advocated for the unique reservation policy कि आप टिलर के फैमिली से, किसानी से जुड़े हुए हैं, अगर परिवार हैं तो उनको आप कोटा दीजिए। That was rejected obviously, and there was a new other system that we are following till today. But basically उनके core ideology में यही था, और उन्हीं बातों की वकालत वो करते थे कि जब तक खेती और खलियानी से जुड़े लोगों को विकास के दायरे में आप नहीं लाएं। I think that was his hallmark.
and he used every office to create institutions that are still relevant. आप पंचायती राज मंत्रालय नहीं था, नाबार्ड नहीं था, सॉरी ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं था, और नाबार्ड नहीं था, और नेशनल पुलिस commission, the first commission was established under his visionary work. So there are many aspects to him. Second thing I would like to reiterate is that talking about his scholarship, he was very conscious, like I was saying, to preserve his legacy. तो उनकी हजारों चिट्ठियां उनके निधन के बाद दादी जी ने उनको नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी को सौंपा, बट वो किस तरह से उसको संभाल के रखते थे। और लोग बताते हैं कि जब वो नीचे बैठे थे अपनी मेज पे लिखते थे, उनको ये भी याद रहता था कि अच्छा वो चिट्ठी जरा खोलो, वो फाइल खोलो, उस फाइल में वो चिट्ठी लिखी है, पढ़िए, जो मैंने उनको लिखी थी। कोई 3 साल पुरानी कोई चिट्ठी है, या कि उन्होंने कोई बात रिसीव की, कहीं नोट किया। He had a photographic memory almost, but he was preserving that. आप सोचिए कि पॉल ब्रास जैसे एक एकेडमिशियन को, एक इंटेलेक्चुअल को, जो बड़ा नाम है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे या रिसर्च पेपर ढूंढेंगे, आप किसी जर्नल पे जाके सिर्फ टाइप करेंगे पॉल ब्रास, आपको पता लग जाएगा उनका कितना लंबा एक वर्क है, फील्ड ऑफ स्टडी उनकी कितनी बड़ी है। पॉल ब्रास को शायद 35 साल लग गए चौधरी साहब पे एक वॉल्यूम लिखने में। आप सोचिए, यानी उनका इतना इन डेप्थ वर्क था, और इशू बेस्ड उन्होंने कैटलॉग किया है जो फर्स्ट वॉल्यूम है पॉल ब्रास में। कोई इशू ऐसा नहीं है जिसपे चौधरी साहब के आपको हजारों लिखी गई नोट्स नहीं मिल जाएंगे, या कोई किताब पे वो इशू को उन्होंने टच ना किया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग गांव देहात में खास तौर से आज भी ओरल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन the way चौधरी साहब documented his life, documented his issues, used his pen, कलम की ताकत का एहसास उनको था, और उन्होंने उसका भरपूर प्रयोग किया, सकुशल प्रयोग किया। I think that's something the youth of today does need to recognize. And here I'd make an appeal to the Haryana Thinkers Forum. I'm very happy that I was given the opportunity today. आपने invite किया. I would like to say that we need scholars today as well to research Chaudhry Sahab, maybe reinterpret his books, his Gandhian philosophy. We cannot reject it even today. आज भी प्रासंगिक हैं कई उनकी बातें. Perhaps we need to look at new works that are researching different aspects of his vision. The need for social reform, his commitment to breaking the hierarchy of caste. If we can talk about Ambedkar ji and annihilation of caste, we must recognize that Chaudhry Sahab was perhaps the tallest leader who could advocate. उस समय कितना विरोध हुआ होगा, हम कल्पना ही कर सकते हैं कि उस समय जाट कॉलेज बड़ौत कहा जाता था, तो उन्होंने विरोध किया इस बात कि जाति का नाम किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं लिया जाना चाहिए. So it took a high degree of moral courage and intellectual honesty to stand for those sort of issues. So there are many aspects to Chaudhry Sahab that does need modern interpretation and scholarly work and research work. I will invite all of these young people, and I'd like to tell you also, one of my cousins, जो वेद बुआ जी के बेटे हैं, हर्ष लोहित, उन्होंने चौधरी साहब की जो मटेरियल्स नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी पे हैं, उनको कैटलॉग करने का काम किया है. उनके डिजिटाइजेशन प्रोसेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, उस पे लगातार वो पुश करते रहते हैं. और एक उन्होंने संस्थागत तरीके से चौधरी साहब को प्रिजर्व करने के लिए एक मेमोरियल के रूप में और एक बहुत बड़े रिसोर्स के रूप में ऑनलाइन आर्काइव क्रिएट किया है. आप टाइप कर सकते हैं www.charansingh.org. सो डू लुक इट अप. जितना भी उनका मटेरियल है उसे एक जगह कंपाइल करके प्रेजेंट करने की कोशिश है. So I will invite all of the young minds and thinkers connected to this forum to look at that exercise, and also to help us in if there's any material that has been left out, if there's any personal material that you may have, because चौधरी साहब के तो घर घर में रूट्स आपके साथ सीधा संवाद भी करते थे आपके परिवारों के साथ. वो पुरानी चीजें शायद आपने भी बचा के रखी होंगी, तो maybe you can contribute to that online archive, which is of course free for everyone to access.
So that is an issue that I wanted to bring to the fore. And again, राजनीति में मैं सक्रिय हूं और एक बड़ी जिम्मेदारी परिवार की भी और राजनीतिक फील्ड में क्षेत्र में मुझे मिली है। चौधरी साहब का तो दायरा बहुत बड़ा था। चौधरी अजीत सिंह जी भी उन इश्यूज को लेकर बहुत पैशनेट थे। I'll be very mindful to take those issues forward. And all I'll say is कि आज इस कठिन दौर में अगर कोई सामान्य बैठक होती या सभा होती तो जो स्पीकर होता है उसे पता लग जाता है कि what is the crowd thinking. But in this format, you tend to speak on and on. So I will not take any more time. I'll conclude my thoughts, and I thank all the esteemed members of audience who came today, and especially our two keynote speakers who spoke extensively about Chaudhary Sahab and his issues. Thank you. Thank you, And Jayant ji.